Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So students, our today's topic is resolution of a vector. So students, what is meant by the resolution of a vector? It is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector. ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उसको टू और मोर कंपोनेंट्स में वो वेक्टर्स में डिवाइड करना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. A component of a vector in any direction gives a measure of effect of the given vector in that direction. Suppose यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक सिंगल वेक्टर है, दैट इज दिस वेक्टर, ठीक है. अब इसको हमने दो वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, वन इज दिस, वन इज दिस. सो स्टूडेंट्स, this is called resolution of a vector. now ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है, ये इस वेक्टर का मीन्स आर वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है. सो स्टूडेंट्स, suppose now see students, suppose we wish to resolve a vector r in the direction of two coplanar or non-parallel vectors a and b as shown in the diagram. तो जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि r वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में, दो वेक्टर्स में जो है डिवाइड करना है, मीन्स वन इज a, सेकंड इज b. नाउ सपोज ओ क्यू रिप्रेजेंट आर वेक्टर. ओके, ओ क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को. ओ नाउ इफ वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ एंड आर, सॉरी ओ एंड क्यू. ओके, द ड्रा लाइन पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड ड्रा अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर बी विच मीट्स एट पॉइंट पी. नाउ यहाँ पे ट्रायंगल लॉ हम लगा सकते हैं. कैसे? नाउ हेयर ओ पी प्लस पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू, और वी कैन से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वी कैन हैव द, here we can have that OP is equal to lambda A and PQ is equal to mu B, where lambda and mu are constant. Now students, we know that OQ is equal to R, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे R किसके इक्वल हुआ, R will be equal to lambda A plus mu B. Thus the vector R has resolved in the directions A and B. Now students, this is called the resolution of the vectors. Now students, our next topic is rectangular component of a vector. तो स्टूडेंट, जैसे हमने अभी रेजोल्यूशन की बात की, तो रेजोल्यूशन में क्या होता है कि एक वेक्टर को हम दो वेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं. बट स्टूडेंट्स, अगर दो जो वेक्टर्स में एक वेक्टर को हम टू वेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, if they are mutually perpendicular, suppose we have a vector r, okay, its one component is this a, one component is this b. Now a and b are perpendicular. So students, if we divide the r vector into two components which are perpendicular, then this is called the rectangular component of the given vector. When a vector is resolved along two mutually perpendicular directions, the components of so obtained are called the. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, a वेक्टर है कोई, ठीक है. a वेक्टर को हमने दो जो है वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, वन इज अलॉन्ग x एक्सिस एंड सेकंड इज अलॉन्ग y एक्सिस. So students, these two are the
rectangular components of vector A. So students, ax is the horizontal component and ay is the vertical or y component of A. So students, now let I and j be the unit vector along x and y axis respectively, and ax ay be the scalar magnitude of ax and ay respectively. Then we can have the vector. We know that vector कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, that vector is equal to the magnitude into unit vector. तो क्योंकि ax x कंपोनेंट है, सो इन x डायरेक्शन वी हैव यूनिट वेक्टर i, तो इसके साथ हमने i लगा दिया, इसके साथ हमने j लगा दिया, तो a किसके इक्वल होगा, एज वी नो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 2, so it will be equal to addition of 2. Now let ax is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta. Then what will be the value? Here we have, so ax square ay square is equal to, क्योंकि यहाँ पे देखो ax की वैल्यू a cos थीटा है, ay की वैल्यू a sin थीटा है, सो अकॉर्डिंगली वी स्क्वायर बोथ एंड ऐड, पहले तो इनका स्क्वायर कर लो, उसके बाद इनको ऐड कर दो, सो वी गेट दिस इक्वेशन, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ax प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, and tan theta is equal to ay upon ax. So this is the rectangular component of the. Next students, we have unit vector. A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector. So unit vector क्या है? It is a vector of unit magnitude, जिसका magnitude कितना होता है? unit in the direction of a given vector. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, सपोज देयर इज ए वेक्टर a, ओके, a वेक्टर, ओके, सो इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा, और दैट हैज वैल्यू यूनिट. अ यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector is formed by dividing the given vector by its modulus. So students, if you want to find out the unit vector, just divide the vector. Suppose we have a vector, okay, just divide the vector a with its modulus. So what is modulus of the vector? So modulus of a vector means the length or magnitude of that vector. ओके, तो मॉडुलस क्या होता है, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना उसका मैग्नीट्यूड है. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ए वेक्टर इज रिटन एज ए कैप. ओके, सो ये जो ऊपर इसके ऐसे ए डाल के ऊपर ऐसे डालते हैं, इट इज नोन एज कैप. So students, any vector can be expressed as the magnitude times the unit vector along its own direction. तो किसी जैसे वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव एनी ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर. ओके, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे अगर b को करना हो, b वेक्टर को, तो b वेक्टर विल बी इक्वल टू b का मॉडुलस और मैग्नीट्यूड इनटू b का b कैप. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द वेक्टर. Now next we have scalar product of two vectors. So first of all we should aware of what is scalar. Scalar quantity, vector quantity. Scalar quantities which are
which has only magnitude, and vector quantities which has magnitude also and direction also. So students, there are two ways in which we can have multiplication of vectors. One is scalar product and second is the vector product. Now we will discuss first the vector product. It is also known as dot product. Okay, the scalar product of two vectors a and b is defined as the product of the magnitudes of a and b and cosine of angle theta between them. ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है बच्चों कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड ले लो. फॉर एग्जांपल ए का मैग्नीट्यूड है 5 और बी का है 7, ठीक है, और साथ में लगेगा इनके कॉस थीटा. थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. सपोज ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, ए एंड बी, और ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का 7, और ये एंगल मान लो है 60 डिग्री, ठीक है. तो उस हिसाब से 5 डॉट मतलब इंटू 7 इंटू कॉस 60, दिस विल बी दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. नाउ स्टूडेंट्स, here we can have the diagram that a dash, this is b dash, this is angle theta. So scalar product of a and b will be equal to a b cos theta. Now students, we have geometrical interpretation of scalar product. So what is the geometrical interpretation? Suppose two vectors a and b. कोई दो वेक्टर मान लो a and b are represented by OP and OQ, ठीक है. तो a वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? OP से. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, OP वेक्टर a, OQ वेक्टर b. तो स्टूडेंट्स, इनमें एंगल कितना है? थीटा, ठीक है. तो इसमें बच्चों अगर अपने बात करें a डॉट बी, ये क्या होगा? a डॉट बी इज इक्वल टू, वी नो दैट, है ना, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे मान के चलें दैट ए बी कॉस थीटा इज दी ओ आर. ओके, दैट इज बी कॉस थीटा इज दी कंपोनेंट ऑफ बी, है ना. कौन सा कंपोनेंट है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है. So in this way a dot b is equal to ab cos theta or ba cos theta. Okay, b into magnitude of component of a. So in this way we can have the meaning of scalar product is that the scalar product of two vector is equal to the product of magnitude of one vector and magnitude of कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. तो एक जैसे यहाँ पे अगर अपने बात करें इस फिगर की, तो यहाँ पे अगर बात करें कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो स्केलर प्रोडक्ट है एक तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लो, ए का मैग्नीट्यूड ले लिया, और दूसरा बी का कंपोनेंट ले लो. बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो ए की डायरेक्शन में, ठीक है. उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द स्केलर प्रोडक्ट. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके.